A very good morning to all of you. In the last class हमने चैप्टर ओवर किया था स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लेजर. चैप्टर नेम इज लेजर. देखो बच्चों, इन फर्स्ट क्लास इन द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी वॉन्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी मेजर such transactions in monetary terms. ठीक है, monetary terms में transactions को measure करने के बाद we record such transactions in the books of original entry, and after recording the transactions in the books of original entry the next step is to post them into ledger यानी classification process. तो all the financial transactions are first of all recorded in the books of original entry और books of original entry को books of original entry को हम प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है ना, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं. तो whatever is the size of the business organization, it doesn't matter whether it is a small size business organization, mid size business organization or big size business organization. In all types of business organization, first of all financial transactions are recorded in the books of original entry या primary books या books of primary entry or in some special purpose subsidiary books. After recording the financial transactions in these books, the second step is to post them into ledger. So ledger is to post them into ledger. Ledger is book of फाइनल एंट्री. लेजर बुक के अंदर हम परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक आइटम. इन द लेजर बुक हम हर असेट का, हर लायबिलिटी का, कैपिटल का, ईच हेड ऑफ एक्सपेंस का एंड ईच हेड ऑफ इनकम का एक सेपरेट अकाउंट हम मेंटेन करते हैं. अब sorry, what is the purpose of maintaining ledger book? The purpose is, what is the purpose of maintaining ledger book? The purpose is to know the exact position of the particular asset, liability, expense or income at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी असेट अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस है वो कितना है, कितना अमाउंट हमें पे करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को. अगर ये चीजें अगर हमें कैलकुलेट करनी है, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर क्रेडिटर, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटर, हाउ मच अमाउंट वी हैव इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, how much amount has been received by the business organization during the financial year under a particular head of income. ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेजर अकाउंट बनाने से रेडीमेड अवेलेबल होती है. That is why after recording the financial transactions in the books of original entry, all these transactions will be posted to the ledger accounts, and these ledger accounts are prepared by the business organization in the ledger book, and this book is also known as book of final entry. It is also known as principal book of accounts or chief book of account.
It is also known as principal book of account or chief book of account. आई होप क्लियर होगा। तो लेजर के बारे में मैं आपको एनफ नॉलेज दे चुका हूं। आओ पेज नंबर 1 of chapter number 13. The name of the chapter is ledger. Business transactions are first entered in the journal or special purpose subsidiary books. The next step is to transfer the entries to the respective accounts in ledger. In other words, all entries recorded in journal or special purpose subsidiary books will classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger. According to L.C. Cropper, L.C. Cropper ledger को बोलते हैं the book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. The book which contains a classified, यानी ledger में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में पास आउट की हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे अंडर अ पर्टिकुलर आइटम, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एंड सच हेड इज नोन एज लेजर अकाउंट. जैसे ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसको फर्नीचर अकाउंट के हेड के अंदर शो किया जाएगा. All the transactions relating to furniture account which have been recorded during the financial year will be collected at one place, that is furniture account, and this account will be maintained in a book called ledger. So L.C. Cropper says the book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. I hope clear होगा. One more definition is there according to J.R. Bartley Boy. The ledger is the chief book of account. वो already मैं आपको बता चुका हूँ कि ledger is chief book of account, and it is in this book that all the business transactions would ultimately find their place under their accounts in a duly classified form. I hope ये होगा आपको अब clear. पेज नंबर 2 पे आपको दे रखे हैं एडवांटेजेस ऑफ लेजर. एक लेजर मेंटेन करने के ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेजेस हैं. तो एडवांटेज ये है कि इन द लेजर बुक फॉर ईच हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन सेपरेट पेजेस इन द लेजर बुक. फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो गया. सेकेंड एडवांटेजेस इज दैट के ओनर विल बी एबल टू गेन ऑल द इंफॉर्मेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे किसी पर्टिकुलर डेटर से कितना अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को ड्यू है, किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर को कितना अमाउंट फाइनली ड्यू टू बी पेड है, किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए हैं. इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप जानना चाहते हो कि हमने कितना अमाउंट रेंट का अब तक पे कर दिया, हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी हैज बीन पेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, how much amount of commission income received by the business organization या earned by the business organization up to that point of time. All such information will be readily available by going through the different ledger accounts of these items. So advantage is number 1, all accounts are opened on separate pages in this book, hence all the transactions pertaining to an account are collected at one place in the ledger. As such, by looking at the balances of that account, one can understand the collective effect of all such transactions relating to that particular account. Clear hai? Now, when the transactions are recorded in the books of original entry, we cannot calculate by analyzing the books of original entry
द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थमेटिक तौर पे तो ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट लेजर अकाउंट्स इन द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। आफ्टर दैट on the balances with the help of the balances of different ledger accounts at the end of the period we will prepare a trial balance. Using the trial balance, by analyzing the trial balance we can calculate the arithmetical accuracy of the books of accounts. अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल वो सेम आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है, देन वी कैन से that our books of accounts are arithmetically correct, arithmetically accurate. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ लेजर के मैं आपको समझा चुका हूं। पॉइंट नंबर 4, बाय यूजिंग द फाइनल बैलेंसेस ऑफ द different nominal accounts, on the basis of balances of different nominal accounts at the end of the financial year we prepare trading and profit and loss account in order to ascertain the financial performance of the business organization. यानी at the end of the financial year या at the end of the accounting year every organization wants to know how much amount of profit earned by the business organization या how much amount of loss suffered by the business organization during the last financial year. तो इस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या कितना लॉस सफर किया, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें डिफरेंट जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं यानी डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट और डिफरेंट इनकम्स अकाउंट, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके बैलेंसेस हम ईयर एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसेस की हेल्प से एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अर्न्ड और सफर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट पॉइंट है एडवांटेज का। एडवांटेज का लास्ट पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट one more statement is prepared by the business organization in order to calculate the financial position of the business organization। कि business organization की financial position किसी particular date के ऊपर, किसी particular date के particular point of time के ऊपर financial position organization की कैसी है। इस पर्पज से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बैलेंस शीट। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट डिफरेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस तो ईयर एंड में हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे? रिमेनिंग रहे आपके पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। तो बैलेंसेस ऑफ ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। ऑल द असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द राइट हैंड साइड and all the liabilities are shown on the left hand side. The total of the two sides must be equal. So by preparing the balance sheet, owner can ascertain or calculate the financial position of the business organization. ये थे कुछ advantages of laser. Laser के ये कुछ advantages थे. Now, what is the difference between the books of original entry and principal book of account? Our next topic is what is the difference between books of original entry यानी journal और other special purpose subsidiary books and principal book of account यानी book of final entry। तो पेज नंबर 3 के ऊपर आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। आई होप इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट में
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में वो बोल रहा है एज द नेम इंडिकेट्स ऑल द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, एंड लेजर कॉलम में वो लिख रहा है ऑल द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर लेटर ट्रांसफर्ड टू द लेजर। यानी first of all financial transactions will be recorded in journal and after that they will be posted into ledger. As such the ledger is also called a book of final entry. Point number second, ये भी हम already discuss कर चुके हैं। In these books यानी in the books of original entry transactions are entered in a chronological order यानी day to day order, whereas in the ledger book ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इन एनालिटिकल मैनर। यानी वहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं चलता, वहां पर एनालिटिकल मैनर के अंदर ट्रांजेक्शंस को पोस्ट किया जाता है। यानी ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड विल बी पोस्टेड इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट इन एनालिटिकल ऑर्डर। तो in the ledger book transactions are recorded in analytical order, that is all the transactions pertaining to a particular account are contained at one place in the ledger. Point number third में वो कह रहा है कि if you want to know the full details of a particular transaction then you must visit books of original entry. किसी particular transaction से related पूरी information अगर आपको चाहिए, all information, तो आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विजिट करनी पड़ेगी। वहां पर क्योंकि नरेशन अवेलेबल होती है हर जर्नल एंट्री के साथ, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको नरेशन के अंदर अवेलेबल होगी। बट इन द लेजर फुल डिटेल्स आर नॉट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। पूरी डिटेल पोस्ट नहीं की जाती, केवल एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया जाता है। तो फुल डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर। लेजर में फुल डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 4 में वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, these final accounts can not be prepared by the business organization directly with the help of books of original entry. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को यूज करके डायरेक्टली आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। क्वाइट डिफिकल्ट नहीं, इम्प्रैक्टिकल ही है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेजर अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में तो किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बिखरी हुई पड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्टिव मैनर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। आफ्टर दैट हर लेजर अकाउंट के जो फाइनल बैलेंसेस हैं उनको यूटिलाइज करके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स ईयर मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Final accounts can be prepared with the help of ledger accounts and not with the help of books of original entry. फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, these are considered as more authentic and reliable in comparison to the ledger, since these are the books in which the entry is recorded first of all. Why these are treated as more authentic? Because in the books of original entry, transactions are recorded on the basis of source documents. source documents के बेसिस पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इन कंपैरिजन टू द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज called as journalizing. यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर बुक इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। ये वर्ड्स बेटा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फ्यूचर में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उस चैप्टर में इन वर्डिंग्स की इंपॉर्टेंस है। इन वर्डिंग्स के बेसिस पे आप वहां पर जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो पाओगे। तो ये जो वर्डिंग्स हैं जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये वर्डिंग थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर ऑफ द लेजर बुक।
यानी लेजर फोलियो कॉलम इज शोन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जर्नल या फिर आपकी स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स जब हम बनाते थे तो वहां पर एक कॉलम होता था लेजर फोलियो का। तो पेज नंबर ऑफ द लेजर दैट इज लेजर फोलियो इज रिटन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड पेज नंबर ऑफ द जर्नल दैट इज जर्नल फोलियो इज रिटन इन द लेजर बुक। वो लेजर बुक के अंदर राइट ऑन किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द बुक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स इज टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनेगा? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। आई होप ये डिस्टिंक्शन के पॉइंट आपको अब होंगे क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर, कि एक लेजर का प्रोफॉर्मा कैसा होता है। देखो एक लेजर का प्रोफॉर्मा देख लो, सिंपल सा है। ऑन बोथ देयर आर टू साइड्स इन अ लेजर अकाउंट, टू इक्वल साइड्स आर देयर। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। On both the sides, 4 columns will be there. First column is for date, second column particulars, third column is journal folio and fourth column is amount. मान लीजिए हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पर मिड में यहां पे हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द अकाउंट यानी फर्नीचर अकाउंट। ये है फर्नीचर अकाउंट का एक सैंपल प्रोफॉर्मा। डेट कॉलम में सबसे पहले हम ईयर स्पेसिफाई करते हैं, जैसे 2021 चल रहा है। आफ्टर दैट मंथ एंड डेट, जैसे आज होगी नवंबर 1 तो यहां पे मैं लिखूंगा नवंबर 1। तो डेट कॉलम में तो आपका ईयर मंथ एंड डेट आ गया। उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम की बात बाद में करते हैं। जर्नल फोलियो कॉलम में जर्नल बुक की यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जिस पेज के ऊपर वो ट्रांजैक्शन आपने जर्नलाइज की है यानी रिकॉर्ड की है, पास की है, वो पेज नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया 40,000 रुपीज का फॉर कैश, और ये आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जर्नल के पेज नंबर 40 पे आपने रिकॉर्ड किया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। तो यहां पर मैं जर्नल फोलियो लिखूंगा पेज नंबर 40। यानी अगर हमें इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ओनर डिमांड कर रहा है या कोई पार्टी डिमांड कर रही है कि हमें इस ट्रांजैक्शन के, हमारा ऑडिटर कह रहा है, पार्टी है मींस ऑडिटर। जब आप ऑडिट के लिए आपका ऑडिटर आता है, सीए आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, तो उस केस में ऑडिटर अगर जानना चाहता है इस एंट्री से रिलेटेड फुल डिटेल्स, तो उसको चाहिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि फुल डिटेल्स तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ही मिलेंगी। तो वो पेज नंबर 40 ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाके इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन उसको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। अमाउंट कॉलम में हम लिखते हैं अमाउंट था हमारी ट्रांजैक्शन का 40,000 रुपीज। अब बात यह है कि पर्टिकुलर्स कॉलम में
देखो यहाँ पर जो जनरल एंट्री हमने पास की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ही पोस्टिंग होगी। जैसे यहाँ पर जनरल एंट्री में हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ही हम इसको पोस्ट करेंगे, और पर्टिकुलर कॉलम में डेबिट साइड में लिखेंगे 2। यहाँ पर जब पर्टिकुलर साइड में हम पर्टिकुलर कॉलम में जो भी डिटेल लिखते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करेंगे हम बाय वर्ड से। क्लियर है? 2 लिखने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट है दैट इज कैश अकाउंट, कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट बोल लो या जो अदर अकाउंट हो, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है। ऐसे देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अदर अकाउंट का नाम लिख के, और जो अमाउंट वो लिखा जाएगा जो फर्नीचर अकाउंट के सामने है, यानी पैसा अपना नाम दूसरे का, ये मान लो आप। तो पैसा तो अपना, फर्नीचर अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखा है 40,000 रुपीज, वो 40,000 यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप पोस्टिंग किस पे कर रहे हो? फर्नीचर अकाउंट में। अब अगर मान लो आपको कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, ये है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट। अदर अकाउंट का नाम लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स कॉलम में, और अमाउंट कॉलम में मैं लिखूंगा 40,000 रुपीज। आई होप ये होगा क्लियर। तो रूल्स ऑफ पोस्टिंग ये भी मैंने आपको इसके साथ ही पढ़ा दिया है। देखो पेज नंबर 4 पे आपको दे रखा है रूल्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द journal entries from the journal or subsidiary books to the ledger. The following rules should be observed while posting entries in the ledger. All transactions relating to an account should be entered at one place. यानी फर्नीचर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो फर्नीचर अकाउंट में ही पोस्ट करोगे। 2 अकाउंट्स फॉर फर्नीचर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। फर्नीचर के लिए 2 अकाउंट नहीं बनेंगे। लेकिन सर मान लीजिए एक हमारा डेटर है राम, और हमारे राम नाम के 2-3 डेटर्स और हैं, तो फिर उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उनके नाम के साथ हम उनके एड्रेसेस भी लिखेंगे, जैसे राम ऑफ जगतपुरा, राम ऑफ शास्त्री नगर, राम ऑफ अंबावाड़ी, लाइक दैट। ठीक है ना? इसके अलावा अगर एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो नाम के साथ ब्रैकेट में उनके सेलफोन नंबर लिख दीजिए। सेलफोन नंबर तो सेम नहीं हो सकते 2 लोगों के, ठीक है ना? तो आप सेलफोन नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएट करने के तरीके होते हैं। सेकंड पॉइंट है द वर्ड टू इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट्स व्हिच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। सिमिलरली द वर्ड बाय इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट्स व्हिच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट साइड में अपीयर क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट से पहले 2 लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में मान लो हमने फर्नीचर सेल किया या फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंट्री में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में जो अकाउंट्स अपीयर हो रहे हैं फर्नीचर अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके नाम से पहले वर्ड लिखा जाएगा बाय। If an account has been debited in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the debit side of such account. Journal entry में अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग करते समय भी उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ही पोस्टिंग करोगे। ठीक है ना? If an account has been created in the journal entry, the posting in the ledger should also be made on the credit side of such account. इस journal entry में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके ही पोस्टिंग आपको करनी है। आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। सिमिलर अमाउंट which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of another account. यहाँ पर आपने सिमिलर अमाउंट पोस्ट करना चाहिए। 40,000 अगर फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हो तो 40,000 ही कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट होंगे। आई होप यहाँ तक अब आपको सब क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, आओ उसको सॉल्व करें। हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे रखी है
कैश सेल्स 20,000, तो अगर कैश सेल्स 20,000 है तो एंट्री हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो एक तो आपका बनेगा कैश अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और दूसरा आपका बनेगा सेल्स अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है ना, 4 कॉलम्स बनेंगे बोथ साइड में, ठीक है ना, ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। अब एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही पोस्टिंग होगी, कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज, और सिमिलर अमाउंट पोस्ट किया जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे बाय राइटिंग बाय कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी द सेम 20,000 रुपीज। आई होप ये होगा क्लियर। ठीक है, आओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपको दे रखा है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की कैसे पोस्टिंग होगी, जैसे एक एग्जांपल हमें दे रखा है कि on 10th of April 2017 cash received from Gopal and Company 14,800 and discount allowed to them 200। गोपाल एंड कंपनी से 14,800 रुपीज हमने रिसीव किए और 200 रुपीज का उनको डिस्काउंट अलाउ किया। आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट 14,800 डिस्काउंट allowed account debit 200 to Gopal and Company account 15,000 रुपीज। ये एंट्री की हमने अप्रैल 10th को। अब आपको इसकी करनी है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग करने के लिए अब देखो 3 अकाउंट है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। 3 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर सेपरेट आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। फॉर ईच एंड एवरी आइटम अ सेपरेट लेजर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो एक तो आपका बन गया कैश अकाउंट, सेकेंड इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जर्नल फोलियो का कॉलम मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, वो बनाने आप लोगों को एग्जाम में। And third one is Gopal and Company account। ठीक है, अब आपका है अप्रैल 10th, तो यहां पे मैंने डेट डाल दी अप्रैल 10th। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्रेडिट कौन सा हो रहा है, एंट्री में गोपाल एंड कंपनी, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। अच्छा, गोपाल एंड कंपनी पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो चाहो तो आप ये अकाउंट वर्ड यहाँ पे लिखो, चाहो नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स के नेम के साथ अकाउंट वर्ड लिखना नेसेसरी नहीं होता। चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। अमाउंट जो अकाउंट के सामने लिखा हुआ है 14,800, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट साइड में वही अप्रैल 10th। क्रेडिट क्या हो रहा है, गोपाल एंड कंपनी, तो टू गोपाल एंड कंपनी।
अमाउंट डिस्काउंट अलाउड के सामने 200 रुपीज। ठीक है, अब डेबिट में तो आ गए 15,000, 14,800 प्लस 200, 15,000 डेबिट साइड में तो दो अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। क्रेडिट साइड गोपाल एंड कंपनी, तो गोपाल एंड कंपनी अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी अप्रैल 10 को। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से, डेबिट कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स कौन कौन से डेबिट हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो यहां पर बाय कैश अकाउंट, सर 15,000 लिख दो बेटा, 15,000 एक साथ थोड़ी ना लिख सकते हैं, ये 15,000 यहाँ पर बाइफरकेट हो गए, ये जो 15,000 है ये यहाँ पर बाइफरकेट हो चुका है। 15,000 में से 14,800 तो कैश अकाउंट के थ्रू आएगा और 200 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के थ्रू आएगा। तो बाय कैश अकाउंट 14,800 एंड ऑन द सेम डेट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपीज। ये हो गई आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग। आई होप यहां तक होगा क्लियर। कोई डाउट्स हो तो आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज मैंने आपको पढ़ाया मीनिंग ऑफ लेजर, एडवांटेजेस ऑफ लेजर, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। आफ्टर दैट हमने पढ़ा प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर, ठीक है ना, पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री एंड पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो आज इतना ही रखते हैं, ये स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया, कुछ बेसिक्स हमारे इस चैप्टर के बन चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। गुड बाय।